Okay. So the first thing is that when you are going to program, there are two options available to you. Number one is that you can write it down online GDB compiler, and then select the Python language from here. So you can write it down your Python programs here and execute it. So there is no need to download any particular program. You can just write it down your programs and run it here directly. This is the first thing you can do if you are not interested in downloading and installing the software in your computer. Okay, so if you are going through that part, sign up and log in, so you can integrate your account with the Google, so all your progress will be saved here. This is the first option. The other option is that if you want to download the Python, so you can just write it down, download Python compiler, and then you can download the Python from this website here. So you'll Python 3.11.1 Python is available, so you can download the Python from here. Once you just install the Python programming, then from the screen you may say I'm just going to write Python, and then I'm going to select IDLE. Is there anyone who would tell that what is the full form for IDLE? IDLE. And then I have just opened the Python compiler. So my Python compiler will look like this. It's not individual, it's basically integrated development learning environment. Integrated development learning environment is the integrated development learning environment. This is for the Python. This is the area where you can write it down your program. So now you can see on the screen, you have seen this is the IDLE shell. You are going to select file, new file, and then you are going to start writing your program from here. So this is the area where you can write it down the program. This is the first area where you can write it down the program. So पेपर में आपसे pseudocode ही पूछेगा, but there are some certain strings that you need to understand, or that may be the part of your paper. Like here, chapter number 8, programming. For those who have taken the classes earlier, they have some idea about the algorithms. तो algorithms में तो हमने simple pseudocode लिखना होता है. Simple pseudocode का मतलब writing program using simple statements. तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि वो जो सूडो कोड्स हमने किए थे वो किस तरह से किए थे. तो उसके लिए मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट. तो सूडो कोड तो आपने पहले समझना है कि सूडो कोड तो आपने लिखना है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपके सिलेबस में वो आपसे कहता है कि आपको पाइथन की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. दैट इज द रीजन वाई उसने पाइथन प्रोग्रामिंग आपके पास यहाँ चैप्टर में दी है. These were discussed in the previous classes कि एल्गोरिथम जब हम लिखने जाते थे तो एल्गोरिथम हम इस तरह लिखा करते थे कि एल्गोरिथम में अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना है, वी राइट इनपुट ए, देन वी राइट इनपुट बी, वी कॉल दैट द अदर वेरिएबल एज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट सी. For those who have just joined recently, so there are some certain steps in programming and algorithms. तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो भी हम लिखते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि भाई मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज द सूडो कोड. तो मैं सूडो कोड की तरफ आता हूँ. तो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग वी हैव इज तो सबसे पहले जो चीजें हमें जो याद होनी चाहिए या हमें पता होनी चाहिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वन थिंग दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. द अदर थिंग इज कॉल्ड कांस्टेंट. हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द डिफरेंस ऑफ दीज थिंग्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट? ये क्या चीजें होती हैं जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं? इवन सूडो कोड लिखो या प्रोग्रामिंग करो तो उसमें हमें वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करना होता है. तो ये चीज क्या होती है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट?
यहाँ आप देख सकते हो कि ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मतलब है कि आपको ये लिखना आना चाहिए। आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट में वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट चेंजेस एवरी टाइम वी रन द प्रोग्राम, फाइन। एंड यस नोफिल, डू यू वांट टू से समथिंग? So variable is something that changes every time in your program, and the constant is a value that does not change in a program. ठीक है ना? तो वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज, लाइक वेरिएबल ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, ठीक है? तो वेरिएबल तो होता ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर सबसे पहले तो जब हम इस तरफ जाते हैं, एल्गोरिथम करने जाते हैं, अब मैं सिंपल वे में आपको बताऊं कि आप जब एल्गोरिथम की तरफ आते हो, तो एल्गोरिथम इज राइटिंग अ प्रोग्राम इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट कह दो विद ऑपरेटर। तो ये तो एल्गोरिथम हो गया। आप जब कहते हो कि एल्गोरिथम क्या है, तो आप कह सकते हो कि एल्गोरिथम इज राइटिंग सॉल्यूशन। एल्गोरिथम क्या है? राइटिंग solution in English statements using English words or English statement, English statement। और उसमें साथ साथ आप यूज करते हो मेक यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो इंग्लिश स्टेटमेंट हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, ऑपरेटर्स लगाते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। वेरिएबल लगाते हो इसमें जब आप प्रोग्राम लिखने जा रहे होते हो, और उसमें फिर लगाते हो कांस्टेंट। अब बात ये होती है कि सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल में हमने पढ़ा कि वेरिएबल वो वैल्यू होती है प्रोग्राम में जो चेंज होती रहती है। वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट चेंजेस इन प्रोग्राम। वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो प्रोग्राम में चेंज होती रहती है। तो वी कैन राइट इट डाउन हियर कि वेरिएबल कौन सी वैल्यू है। वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट चेंजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के दौरान जो वैल्यू चेंज होती रहती है वो कहलाती है वेरिएबल। उसकी एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप कि अब ये इनपुट ए है, इनपुट बी है, ये दो वैल्यू आपने इनपुट की, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, यानी दोनों नंबर को आपने ऐड किया, ए को और बी को, और सी में उसका रिजल्ट डाल दिया, और आखिर में आपने प्रिंट सी कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ए है और बी है, दे आर कॉल्ड द वेरिएबल्स, क्योंकि हर दफा ए और बी की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। अब बात ये आती है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम करने के लिए जाते हो, यहाँ से शुरू होती है आपकी स्ट्रेटजी कि सबसे पहले आप यहाँ आ गए चैप्टर नंबर 8 प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले ही उसने ये बात कही है कि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखने जाते हैं, तो उस प्रोग्राम में आपको सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। कोई एग्जाम्पल देगा मुझे कांस्टेंट की? कांस्टेंट की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। तो कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकता है कांस्टेंट की? एग्जाम्पल क्या हो सकती है? व्हाट कुड बी द एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। जैसे हमने देखा कि कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, सच एज आउटपुट ऑफ द सेल ऑफ टू शॉप। अच्छा, कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी हो सकती है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे हो सकती है कि मैं आपसे कहूँ डेज इन अ वीक। डेज इन अ वीक 7 रहते हैं, और डेज इन अ ईयर वो 365 फिक्स रहते हैं। यह वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है? तो ये इसकी एग्जाम्पल हो सकती है कांस्टेंट की। तो हम कांस्टेंट की क्या ले सकते हैं एग्जांपल्स, जो मैंने आपसे डिस्कस की कि कांस्टेंट आर द वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। तो पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब हम थोड़ा सा आते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। द फर्स्ट थिंग वी हैव इज कि अब हमें जब प्रोग्राम्स गिवन होंगे, तो सबसे पहले तो उसने देखो यहाँ बता दिया कि ये एक पाइथन का एनवायरनमेंट है। पाइथन का इन्वायरमेंट मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिया, ये यहाँ पे आ रहा है। जब सबसे पहले पाइथन आपकी खुलेगी तो वो इस तरह से होगी, यू आर गोइंग टू राइट फाइल। आप फाइल पे जाओगे, न्यू फाइल के पास जाओगे। जब आप न्यू फाइल पे जाओगे तो आपको एक इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा।
न्यू फाइल पे जाने के बाद आपको इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी प्रोग्राम को लिखने का जो होता है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो कौन बताएगा, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्रोग्राम को करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें कौन सी होती हैं, सबसे अहम 3 चीजें क्या होती हैं जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हो। कोई एल्गोरिथम दिया जाए या कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए, अवॉइडिंग सिंटेक्स नहीं। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, किसी भी सॉल्यूशन को लिखने के लिए वो सॉल्यूशन 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। व्हाट आर दीज 3 स्टेप्स, व्हाट आर द 3 स्टेप्स, वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। वेरी गुड। कि जब भी कोई आपको प्रोग्राम दिया जाए, कोई भी चीज आपको दी जाती है, वो हमेशा 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी सबसे आसान तरीन प्रोग्राम, सबसे आसान तरीन प्रोग्राम कि आपने 2 नंबर को ऐड करना है, आपने 2 नंबर को ऐड करना है। हाउ यू आर गोइंग टू ऐड अप द 2 नंबर्स, उसके लिए आप सिंपल यहाँ चले गए और मैं यहाँ जाके ओपन कर लेता हूँ। आई हैड सम प्रोग्राम्स अर्लियर। अब ऐड का प्रोग्राम है एडिशन और ऐड। मैंने एडिशन का प्रोग्राम उठाया एंड नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि ये प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करके दे रहा है, 2 नंबर को ऐड करके दे रहा है। अब इसमें ये ए जो है ये वेरिएबल है, इसमें बी वेरिएबल है, इसमें सम वेरिएबल है। ये वो वेरिएबल्स हैं जो वैल्यू अपने अंदर स्टोर करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि वेरिएबल बेसिकली इज अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल वो मेमोरी लोकेशन होती है जो डाटा को अपने अंदर सेव करती है। यानी ए में जो भी डालोगे, जो वैल्यू होगी वो ए में जाएगी, सेकंड वैल्यू बी में जाएगी, और फिर उसके बाद सम के अंदर दोनों का सम हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे कि जब भी आप वेरिएबल इनपुट ए लिखते हो ना, जब भी आप इनपुट ए लिखते हो, आपके पास कंप्यूटर में एक मेमोरी रिजर्व हो जाती है ए के लिए। फिर इसी तरह जब आपने बी लिखा, देयर इज अनदर स्पेस रिजर्व फॉर बी, एक और स्पेस बी के लिए आ जाती है। फिर आप जब सम लिखते हो, आप सम लिखते हो तो होता क्या है कि इफ यू गिव सम वैल्यू इन अ वेरिएबल ए, आप वेरिएबल ए में कोई वैल्यू लिखते हो, तो वो जो वेरिएबल ए की जो वैल्यू होती है, लेट्स सपोज आपने दिया 5, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहेगी। ए में 5 डाल दी और बी में अगली वैल्यू आपने 6 डाल दी। नाउ सम कंटेन्स अ वैल्यू ए प्लस बी, तो वैल्यू ऑफ 5 एंड वैल्यू ऑफ 6 ये जाके एड अप हो जाएगी एंड जो रिजल्ट होगा 11 वो आपको मिल जाएगा। तो ये वेरिएबल का काम होता है, वैल्यू को होल्ड कराना और उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करना। अब यहाँ पे आप सब याद रखें कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट तो हमने पढ़ा। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट के अंदर द वे टू राइट द इनपुट स्टेटमेंट, ये जो पहली चीज है ना, ये जो पहली चीज है, जो फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ लिखी है, ये मैं इनपुट ले रहा हूँ। अच्छा, अभी इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करूँ, मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूँ, मैं इसको ये मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको भी मिटा देता हूँ, ये भी मैंने मिटा दिया और लिखा हुआ है अब। अच्छा, इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट जरूर देना चाहूंगा, आप सबको ये कॉन्सेप्ट जरूर है, बट आई एम गोइंग टू रिकैप द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टर्म डेटा टाइप्स। देखो मैंने वेरिएबल तो पढ़ा दिया इसमें, यहाँ पे बुक के सीक्वेंस के हिसाब से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में वेरिएबल आता है। तो कह रहा है कि भाई वेरिएबल इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ नेम्ड डेटा स्टोर दैन कंटेन्स अ वैल्यू दैट में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इन चीजों को याद रखना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि ये कंफर्म पेपर में एक एक दो दो मार्क की डेफिनेशन भी पूछ सकता है और मैच करने के लिए भी पूछ सकता है। तो वेरिएबल की वैल्यू तो ये आ गई। कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है, अ कांस्टेंट इन अ प्रोग्राम इज नेम्ड डेटा स्टोर देन कंटेन्स अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट की वैल्यू वो होती है जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती। ये बात तो हमने कर ली। अच्छा, एक और बात, जब आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हो, जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो, तो इसमें आपको 5 अहम चीजें याद रखनी होती है। सबसे पहले वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, और एरेस क्या है। एरेस पे मैं बात नहीं कर रहा, एरे की क्लास में जल्दी रखूंगा, लेकिन जब मैं पहले आप लोगों को थोड़े एल्गोरिथम्स पक्के कर लूंगा तो एल्गोरिथम्स पे बात करूंगा। अच्छा, सीक्वेंस की डेफिनेशन आपसे पूछी भी होगी पहले, आपने देखी भी होगी पेपर में कि सीक्वेंस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन अ टास्क। यानी सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ये मैंने प्रोग्राम लिखा, यहाँ देखो, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है ये सीक्वेंस वाला प्रोग्राम है। इसका मतलब सीक्वेंस की डेफिनेशन अपने पास लिखना चाहो तो नोट कर लो।
सीक्वेंस इज द ऑर्डर इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन, ये लिख लो, ये पेपर में पूछी जाती है चीजें, तो ये नोट डाउन कर लो कि सीक्वेंस इज द ऑर्डर इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन। सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं कि सीक्वेंस इज द ऑर्डर in which programs are written। ये भी रिसेंट भी आप लोगों को आपके मिड टर्म में सवाल मिला होगा, सीक्वेंस इज द ऑर्डर इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन। अब आपने देखा कि प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो प्रोग्राम में अगर आपसे कहे कि एग्जाम्पल बताओ, सीक्वेंस की एग्जाम्पल बताओ, तो सीक्वेंस की एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हो? सीक्वेंस की एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि इनपुट ए सीक्वेंस में इस तरह से लिखा जा सकता है। मैं सीक्वेंस की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है सीक्वेंस की। सीक्वेंस की एग्जाम्पल है इनपुट ए किया, इनपुट बी किया, सम बराबर है ए प्लस बी किया और आउटपुट सी किया। ये है सीक्वेंस की एग्जाम्पल। आउटपुट सम, सॉरी, ये सीक्वेंस की एग्जाम्पल है। दिस इज हाउ द सीक्वेंस, बुक में है ये डेफिनेशन, बुक में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, नहीं है तो ये लिख लो, सीक्वेंस को इसी तरह डिफाइन किया जाता है। ठीक है जी, तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है सीक्वेंस की, तो मैंने आपको ये बता दी। अच्छा, अब जब नेक्स्ट चीज की तरफ हम जाते हैं, आगे जाते हैं, तो सीक्वेंस तो बता दिया। अच्छा, सिलेक्शन बता देते हैं। सिलेक्शन के बारे में कोई बताएगा सिलेक्शन क्या होता है? प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में सिलेक्शन क्या चीज होती है? सिलेक्शन क्या चीज होती है? एनीवन वो टेल मी अबाउट कि भाई सिलेक्शन किस चीज को हम कहते हैं? सीक्वेंस तो हो गया ना, सिलेक्शन किस चीज को कहते हैं? अगर मैं यहाँ लिखूं सिलेक्शन, सिलेक्शन ट्रू फॉल्स, नहीं, सिलेक्शन के लिए आप लिखोगे यहाँ पे, आप इफ देन एल्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि अगर आप कहते हो कि भाई इनपुट कर रहा हूं मैं और इनपुट की वैल्यू ये बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो सिलेक्शन दो तरह की होती है। सिलेक्शन में एक आपके पास आता है इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, और सिलेक्शन में आपके पास आ जाता है केस ऑफ अदरवाइज, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। तो ये दो चीजें होती हैं जो सिलेक्शन का पार्ट होती हैं। अब उसकी एग्जाम्पल आपसे पूछे कि भाई सिलेक्शन की एग्जाम्पल दो, तो सिलेक्शन की एग्जाम्पल आप बहुत आसानी से दे सकते हो कि सिलेक्शन की एग्जाम्पल होती है, सिलेक्शन आप दे सकते हो इफ ए ग्रेटर देन 0, तो आप कह सकते हो देन प्रिंट वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर ऐसा नहीं है, इफ देन एल्स जो हम पढ़ते हैं, इफ प्रिंट पॉजिटिव, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो हम कहते हैं प्रिंट नेगेटिव। ये है सिलेक्शन की एग्जाम्पल। सिलेक्शन डिसाइड्स द पाथ टू गो। सिलेक्शन क्या करता है? सिलेक्शन बताता है कि किस रास्ते जाना है। अगर आपने इनपुट किया और इनपुट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर हुआ, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है वो नेगेटिव नंबर है। तो इसके बारे में जो आप लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि सिलेक्शन डिसाइड्स द पाथ टू गो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिलेक्शन क्या बताता है? सिलेक्शन डिसाइड्स द पाथ टू गो, किस रास्ते जाना है, तो ये काम होता है आपका सिलेक्शन का। तो इसी तरह पूछते हैं, इसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूंगा, बल्कि अभी देखता हूं मैं इसकी पास्ट पेपर के डॉक्यूमेंट से। तो यहाँ तक मैं चल रहा हूँ। अच्छा, आइट्रेशन, तीसरी चीज, चौथी चीज आ गई। आइट्रेशन के बारे में बता भी रहा है कि रिपीटेड स्टेप्स। कुछ चीजें मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बता रहा, कुछ चीजें मैं आपको हाईलाइट बता रहा हूँ, जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी तो फिर मैं डिटेल पे भी बात करूंगा। आइट्रेशन का मतलब ये कि आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम आता है जो आपसे कहते हैं 10 दफा नंबर को इनपुट करो। जैसे टेबल की बात करते हैं, टेबल, टेबल का मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ आऊँ, मेरे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है टेबल का। टेबल का मतलब कि आप नंबर इनपुट करोगे
जैसे आपने कहा भाई नंबर है, आई गेस यहाँ नहीं बना हुआ, हाँ बना हुआ है, टेबल का प्रोग्राम बना हुआ है। अब टेबल का प्रोग्राम को जरा समझना, टेबल का प्रोग्राम क्या है। टेबल के प्रोग्राम में सबसे पहले पहली लाइन में आप ले रहे हो इनपुट, नंबर इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर अ नंबर। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये वो वैल्यू है कि किसका टेबल चाहिए आपको। जो पहली लाइन है वो ये उसमें जो आप लिख रहे हो ना नम इक्वल टू इंटीजर, ये इस चीज के बारे में बता रही है कि नंबर बताओ जिसका तुम्हें इनपुट टेबल चाहिए। अच्छा, ये है बेसिकली आइट्रेशन, ये जो पार्ट है ना ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं आइट्रेशन। अब आइट्रेशन क्यों कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 1,11, यानी इसकी जो यहाँ पे पर्पज है वो ये है कि आई की वैल्यू को 1 से लेकर 10 तक चलाएगा। 11 लिखा हुआ है तो 11 का मतलब ये है कि ये 10 तक चलाएगा, एक स्टेप पहले चलाएगा। अच्छा, नम के अंदर आपने नंबर डाल दिया, ऊपर देखो नम लिखा हुआ था, नम में लेट सपोज आपने नम में डाल दिया 7, आपने नम में डाल दिया 7, तो नम में तो 7 चल रहा है, और आई में आपके पास ऑलरेडी ऊपर अगर आप देखो तो आई में 1 है, तो 1 यहां आ गया। तो 7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके आंसर में वैल्यू आ जाएगी 7। ये इस तरह से चलेगा, मैं आपको भी एग्जीक्यूट भी करके दिखाता हूं, मैं पहले खुद से बता रहा हूं। अच्छा, हमने अभी पढ़ा था कि एक प्रोग्राम में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट जरूर होता है। तो ये जो पहली लाइन है जिसमें लिखा हुआ है नम बराबर है इंटीजर इनपुट इंटर नंबर, ये हो गया इनपुट। ये फॉर और ये आंसर वाली लाइन ये हो गया प्रोसेस। और उसके बाद कहता है प्रिंट में कि प्रिंट के बाद जब आपने लिखा नम, NUM नम, नम ने आपने 7 डाला है, जो कुछ इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ है आपने ये जैसा है वैसे ही प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, इसका और कोई काम नहीं है। तो बेसिकली लिखा हुआ आ रहा होगा 7 मल्टीप्लाई आई के अंदर वैल्यू 1 होगी, तो 7 इंटू 1 7 लिखा हुआ आएगा, फिर इक्वल टू जैसा है वैसे लिखा हुआ आएगा, और आंसर के अंदर अगर आप देखो लिखा हुआ है 7, तो आपके पास आंसर में 7 आ जाएगा। ये तो वो बातें हो गई जो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन बता दी कि ख्याली जो है वो चीजें इस तरह की होंगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिंग दीज थिंग्स, अब मैंने इसको चलाया, मैं F5 का बटन दबा सकता हूँ और मैं रन पे जा सकता हूँ। मैं यहाँ रन पे गया और रन मॉड्यूल किया, रन मॉड्यूल करके मैंने ओके किया। नाउ यू कैन सी कि अब मेरा प्रोग्राम चलना चाहिए और मुझसे लेगा इनपुट। जस्ट अ मिनट, लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया, मैं पहले एग्जीक्यूट करके दिखा दूं फिर चलाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एरर आ रहा है, मसला नहीं है, मैं इसी सेम कोड को उठाता हूँ, मैं इसी सेम कोड को उठाता हूँ और मैं कॉपी करके इसको ऑनलाइन GDB कंपाइलर पे ले आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट करके चलाता हूँ। जब मैंने चलाया इसको तो आप जरा नीचे देखो, इंटर अ नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये पहली लाइन चली है मेरी, नम इक्वल टू इंटीजर इनपुट। ये जो इंटीजर है ना, मैं इस पॉइंट पे आते आते रह गया कि जो इनपुट लेने का तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप लिखते हो वेरिएबल का नाम। याद रखना, जब आप इनपुट लेने जाते हो तो सबसे पहले आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, ABCD कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ नंबर है तो मैंने नम लिख दिया। इक्वल टू के बाद लिखते हो डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब किस तरह का डाटा आप इनपुट कर रहे हो, क्या वो नंबर है, अगर वो नंबर है बिना किसी डेसिमल पॉइंट के तो आप इंटीजर लिख देते हो, अगर उसमें कोई डेसिमल पॉइंट है तो आप उसको फ्लोट लिखते हो, फ्लोट भी लिख सकते हो। अच्छा खैर, अभी मैं चेंज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरा प्रोग्राम चल रहा है। तो पहली लाइन में ये कह रहा है नम इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर अ नंबर, जो कुछ इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखते हो ना ग्रीन में, वो वैसे के वैसे ही आउटपुट स्क्रीन पे आ जाता है, ये काम होता है इन्वर्टेड कॉमा का। ठीक है, अब वो यहाँ कहता है इंटर करो एक नंबर, मैंने 7 किया, ठीक है, 7 करके मैंने इंटर किया। अब आप देखो जैसे ही मैंने 7 करके इंटर किया मेरे पास 7 का टेबल जनरेट हुआ। क्या आप सबको 7 का टेबल स्क्रीन पे नजर आ रहा है? तो ये क्या हुआ, ये जो मैंने पॉइंट उठाया था ना, कि ये जो पॉइंट था आइट्रेशन वाला, आइट्रेशन रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन अ प्रोग्राम, इस चीज को आइट्रेशन कहते हैं, कि आपका प्रोग्राम खुद से कई दफा एग्जीक्यूट करे अपने आप को। अब मैं यही बात आपको समझा रहा था कि फॉर आई एक वेरिएबल है इन रेंज 1,11,
1,11 लिखने का मकसद है कि जो आई है वो 10 दफा चलेगा। 1,11 का मतलब है 10 दफा चलेगा। और फिर नीचे आ गए, नम के अंदर आपने 7 डाला था, आई में आपके पास पहली वैल्यू करंटली 1 है, तो 7 1 से 7 होके आंसर में 7 चला गया। अब जब आप प्रिंट में आए तो प्रिंट में नम की जगह पे 7 था, देखो नीचे 7 प्रिंट हो गया। एक्स जैसा इन्वर्टेड कॉमा में था वैसे ही आ गया। आई की जगह इनिशियली अभी 1 था, 1 आ गया, इक्वल टू आ गया, और उसके बाद आंसर में 7 1 से 7 होके 7 आ रहा था, ये 7 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, एक दफा प्रिंट होने के बाद ये दोबारा ऊपर जाएगा क्योंकि आई को 10 दफा चलना है। अब आई रेंज में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब नीचे दोबारा आएगा और आई 2 होगा और नम 7 होगा, तो 7 2 14 हो जाएगा। फिर नीचे प्रिंट पे आएगा, नम लिखेगा, नम 7 अपनी जगह रहा, एक्स अपनी जगह रहा, आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 2 थी तो यहाँ 2 प्रिंट हो गया, और इक्वल टू के बाद आंसर में 7 2 14 आ रहा था तो 14 प्रिंट हो गया। आप में से कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में क्लियरली आ गई? द कॉन्सेप्ट ऑफ आइट्रेशन, जिसमें आप रिपीटेड सेट टाइम तक मूवमेंट कर सकते हो, यानी रिपीटेड टाइम्स तक। रेंज 1 to 10 क्यों नहीं लिखी? इसलिए नहीं लिखी कि पाइथन से जो सपोर्ट करता है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो हमें पाइथन लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो करना होता है। सिंटेक्स हम कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं सिंटेक्स। तो सिंटेक्स को फॉलो करना होता है। तो पाइथन में अगर हम 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे ना तो होगा ये कि वो 9 तक चलेगा। इसलिए हमें जितनी जगह जितनी दफा जाना होता है तो हम उससे एक स्टेप ज्यादा लिखते हैं, ये रीजन होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये वाला पॉइंट क्लियर होता है? तो मुझे बाकी बच्चों के रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे। अयान, हैदर, हिमान, एजान, माज, बिलाल, महा, मुस्तफ़ा, नौफिल, नेहान, राफे, उमर, उजैर, यासिर, जैउन्निसा, जोहा, अब्दुल्ला, मोहसिन, अब्दुल राफे, अब्दुल मालिक, अब्दुल्ला मालिक, अलिशबा, अरीब, अरसलान, अयान क्लियर हो रही हैं चीजें आप लोगों को? आइट्रेशन लिखना होता है प्रोग्राम में। आइट्रेशन आइट्रेशन जो है ना वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो पूछ सकता है कि भाई आइट्रेशन क्या चीज है। तो आप बता सकते हो कि आइट्रेशन इज व्हेन यू रिपीट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोग्राम। जब आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को प्रोग्राम में लिखते हो, रिपीट करते हो, तो वो आइट्रेशन कहलाती है। सिंटेक्स को आपको मेमोराइज से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको सिंटेक्स समझ में आएगा। याद तो मतलब पेपर के लिए तो ज़ाहिर है आपको याद तो होना चाहिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो हमने वेरिएबल यूज किया। अच्छा, आखिरी चीज थी ऑपरेटर। ऑपरेटर तो आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और वो आप सब पढ़ चुके हो। बूलियन लॉजिक जो है चैप्टर नंबर 10, तो ऑपरेटर तो ये चीज हो जाती है। अभी क्लास जो है वो जूम की मीटिंग एंड होने वाली है, हम क्लास को यहाँ पे रोकेंगे और आप लोग दोबारा से रिकनेक्ट करो और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।